students. I hope all are you good. Now here I have come with the next topic, that is derivative of higher order. The differential coefficient of dy by dx is equals to dy by dx का दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे हैं, then dy by dx of dy by dx is called the second derivative of y with respect to x, and it is denoted by d2y by dx. If we get a function y is equals to fx, अगर हमें y is equals to fx फंक्शन दिया हुआ है, then dy by dx is called the first order derivative, or you can say y1, इसे हम y1 भी कहते हैं, or you can say f dash x. Now if second order derivative we have to find, that is d2y by dx2 or y2 or f double dash x, that is the second order derivative of function fx. Then third order derivative is d3y by dx3, or you can say y3 or f triple dash x, that is third derivative of a function fx, and so on. We can find the nth derivative, that is dny by dxn. ये nth order derivative तक हम किसी भी function का derivative find out कर सकते हैं. Now students we go with the exercise question. इसका exercise question लेते हैं कि मतलब एक बार derivative करके फिर उसका दोबारा से derivative करना, that is second order, फिर हम उसको third time जो derivative कर सकते हैं, that is third order derivative, and so on. और ये चलता जाएगा continuously. Now we are taking the exercise question, and the very first question is, if a function y is equals to e raised to power 2x plus cos 3x, and we have to find the second order derivative of this function. इस function का हमें second order derivative करना है. तो second order derivative find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? First of all we find differentiate the function with respect to x. पहले हमें इसका dy by dx find out करना है. So e raised to power 2x का डेरिवेटिव e raised to power 2x into 2 plus cos 3x का डेरिवेटिव होता है minus sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3. So it will give dy by dx which is equals to 2 e raised to power 2x minus 3 sin 3x. ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया. Now we have to find the second derivative. So again differentiate with respect to x. हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड जब y का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि d by dx of dy by dx, that is called, इसको कहा जाएगा d2y by dx2. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ d2y by dx2 is equals to, इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, और 2x का 2 बाहर आ जाएगा, so that is 4 e की पावर 2x. Then माइनस साइन है, 3 आपका कांस्टेंट है, sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, और 3x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 9. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो ये इसका आंसर होगा, और यही इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो ये है, log of x स्क्वायर ओवर e रेज़ टू पावर x. अगर इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे? देखिए y इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन है आपके पास, तो y इज इक्वल्स टू log m अपॉन n. मैं यहाँ पे रूल लगा देती हूँ, x स्क्वायर माइनस log e रेज़ टू पावर x, log m माइनस log n. फिर पावर आगे आ जाती है, तो दैट इट मीन्स log 2 log x माइनस x log e. log e की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो y आपका फंक्शन आ गया है 2 log x माइनस x. अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. सो dy by dx इज इक्वल्स टू 2, आपका कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x माइनस x का डेरिवेटिव हो गया 1. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया. अब हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि d2y by dx2. सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसी फंक्शन को दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे, देन d2y by dx2 इज इक्वल्स टू 2 by x. 2 by x का डेरिवेटिव x की पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1, फिर पावर नीचे आ जाएगी तो 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है. So that is your second order derivative of this function, that is log x square over e raised to power x. Now next question we are going,
थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ ले रही हूँ। तो इस तरह से हम एक फंक्शन का दोबारा से अगेन डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव हायर ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रूव करने का क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू, अगर y आपको दे रखा है साइन इनवर्स x, y एक फंक्शन है साइन इनवर्स x, देन शो दैट, आपको शो करना है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx2 माइनस एक्स dy by dx इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, ये शो करना है हमें। सो इसमें देखिए सबसे पहले हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड, ये शो करना, कि शो करने का मतलब कहाँ होता है कि आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। सो हियर वी गो, पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा dy by dx, फिर उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे, देन वी कैन फाइंड आउट d2y by dx। सो y is equals to this, so dy by dx, differentiate this function with respect to x, we get sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 over 1 minus x square, that is the derivative of sin inverse x. Again differentiate with respect to x, इसको दोबारा से differentiate कर देंगे with respect to x, we get d2y by dx2, और d2y by dx2 क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी पावर ऊपर जाके और ये सॉल्व हो जाएगा, आप माइनस 1/2 ऊपर ही लिख देती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू माइनस 2x। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट विल गिव x ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। सो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज फर्स्ट, और ये सेकंड आप ले सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ जो हमें प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस dy by dx की वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके dy by dx की है। अब देखिए सॉल्व करिए, ये पावर यहाँ पे 1 है, ये पावर 3/2 है, देन इट विल गिव x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, एंड इट विल गिव 0, ये 0 के इक्वल। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और वो राइट हैंड के साइड के इक्वल आ गए, तो ये शो हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज y इज इक्वल्स टू, ये भी हमें प्रूव करना है, इफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, अगर y आपको दे रखा है cot इनवर्स x, cot इनवर्स x होल स्क्वायर, देन शो दैट, आपको शो करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y by dx2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ इस तरह की क्वेश्चन में भी वही प्रूव करने के लिए या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं, वरना एक और इसमें तरीका है, और एक और मैं आपको बताती हूँ, और वो क्या है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड dy by dx, dy by dx यानी कि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे देन इट विल गिव 2 पावर आगे आ जाएगी 2 cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 cot इनवर्स x। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन की आपकी प्रोडक्ट में है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल हम यहाँ लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड dy dx ऑफ dy by dx विच इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d2y by dx2। dy by dx का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है, d2y by dx2। So first function as it is derivative of second, then second function as it is dy by dx as it is, और 1 plus x square का डेरिवेटिव करना है तो 1 आपका कांस्टेंट है और x square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट साइड दूसरी साइड चलेंगे, और दूसरी साइड आपका क्या है -2 आपका कांस्टेंट है, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव अगेन -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, देन 2 over 1 plus x square and it will 1 plus x square d2y by dx2 plus 2x dy by dx। इधर डिवाइड में इसको इधर ले आइए, यहाँ पे एक ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो 1 plus x square का होल स्क्वायर आ जाएगा, d2y by dx2 plus 2x मल्टीप्लाई में 1 plus x square dy by dx is equals to 2, hence proof। ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो log का ले लेते हैं। cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और log दोनों ही इकट्ठे आपके, और उसको देखिए कैसे करेंगे। if a function y is equals to, fifth question, y is equals to 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये फंक्शन है आपके पास sin log x, and you have to find us, or you can prove that x square y2 plus xy1 plus y is equals to 0. So don't be confused here. y2 means second order derivative and y1 means first order derivative. अभी मैंने आपको बताया था that dy by dx रिप्रेजेंटेशन है आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं और इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y1 और y2 का मतलब है दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y1 इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हमें dy by dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट हैपन। सो dy by dx, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देन 3 cos log x, cos का डेरिवेटिव होता है sin log x और log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 by x, प्लस माइनस साइन होता है, माइनस साइन लगाएंगे, प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव होता है cos log x और log x का डेरिवेटिव हो गया 1 by x। देखिए x x यहाँ पे एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। देन x dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब ये प्रोडक्ट रूप फॉर्म में आ चुका है, हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। Now first function as it is x as it is, second derivative y1 यानी कि dy by dx का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, then it will give y2 plus y1 as it is और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव करेंगे, माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव होता है cos x log x यानी कि cos log x ओवर log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा तो डायरेक्ट लिख दी हूँ माइनस साइन log x ओवर x, फिर से एलसीएम आएगा यहाँ पे x और इस x की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगी, देन x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस 3 cos log x, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x और 3 cos log x प्लस 4 sin log x आपका फिर से सारा क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x इज योर y। सो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे y रख देते हैं, तो x स्क्वायर y2 प्लस x1 इज इक्वल्स टू माइनस y इधर आके प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज आल्सो, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रूव करने के हैं, सेकंड ऑर्डर में आपको ये इक्वेशंस को प्रूव करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपको दे रखा है एंड यू हैव टू शो दैट, आपको शो करना है, show that 1 minus x square into d2y by dx is equals to, minus 3x dy by dx minus y is equal to 0। ये इक्वेशन आपको शो करनी है।
तो इसको शो करने के लिए देखिए फिर से वही करेंगे, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx और d2y by dx की फॉर्म में हम इसको फाइंड आउट करेंगे पहले, और देन पुट इन दिस इक्वेशन, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी कर सकते हैं। और अभी जो हमने किया कि आप एक ही साइड से इसको सॉल्व करके प्रोडक्ट रूल लगा के इसमें सॉल्व करके कर सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपन। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए और इजीली हो जाएगा, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहे, अलग अलग मेथड है, जो भी आपको सुटेबल लगे यू कैन सॉल्व बाय दिस। नाउ डिफरेंशिएट, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में है तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ dy, sorry, derivative of y is dy by dx, then plus y as it is and derivative of 1 minus x square, और 1 minus x square का डेरिवेटिव होगा 1 upon 2 under root 1 minus x square minus 2x। y x square का भी डेरिवेटिव करना है और उसका डेरिवेटिव आ जाएगा minus 2x which is equals to sin inverse x, और sin inverse x का डेरिवेटिव होता है root 1 minus x square। दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड में है, इसको इधर लेकर आएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, yx ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आपका आ चुका है यहाँ तक। नाउ अगेन अब इसको डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर से ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस yx इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गई है। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। टू फंक्शन आपके प्रोडक्ट रूल में है, फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx एज इट इज एंड डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x माइनस, नाउ हियर yx अगेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट रूल करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x एज इट इज और इसका dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 1 का डेरिवेटिव आ गया आपका 0। नाउ अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई एम सॉल्विंग हियर, so 1 minus x square into d2y by dx2 plus minus 2x dy by dx minus y minus x dy by dx is equal to 0। minus 2x और minus x, it will give 1 minus x square d2y by dx2 minus 3x dy by dx minus y is equal to 0, और hence the result यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज इनवर्स टिग्नो में चलते हैं हम थोड़ा सा। इनवर्स में आपको दे रखा है इफ y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स। ये क्वेश्चन हम बहुत बार अलग अलग मेथड से हर एक फॉर्म में कर चुके हैं, चाहे वो पैरामीट्रिक हो अदरवाइज इम्प्लिसिट हो, ये वाला क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। दैट इज y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस x माइनस 1 माइनस कॉस एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ जी, ये फंक्शन आपको दे रखा है और इस फंक्शन को आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव यानी कि फाइंड आपको निकालना है, फाइंड d2y बाई dx2। d2y बाई dx2 हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, हर बार हमने इसे यहाँ पे पुट करके भी किया है। देन y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस x प्लस 1 माइनस कॉस x ओवर अंडर रूट 1 प्लस कॉस x माइनस 1 माइनस कॉस x। रैशनलाइज करती हूँ, अंडर रूट 1 प्लस कॉस x प्लस माइनस साइन है, प्लस में चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस x ओवर अंडर रूट 1 प्लस कॉस x प्लस 1 माइनस कॉस x। रैशनलाइज कर रहे हैं तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, उसी से आपने क्या करना है डिवाइड करना है। नाउ
ऊपर बनेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस और ये प्लस, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस cos x इज 2 cos x। ऊपर वाली टर्म भी आप सॉल्व करेंगे, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b को जब होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे देन इट विल गिव टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस sin x ओवर cos x। अब ऊपर नीचे मैं cos x से डिवाइड कर देती हूँ, और जब मैं cos x से डिवाइड करूंगी, और एक और दूसरा तरीका भी हम इसको कर सकते हैं, लेट अस सी टेंजेंट इनवर्स, इस वन को आई कैन राइट sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आपका 1 होता है, प्लस sin x को मैं लिख सकती हूँ 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन cos x है, और cos x में हम cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, और वो जो फार्मूला है मैं वो थर्ड वन यूज करूंगी यहाँ पे, दैट इज cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। ऊपर आपकी आइडेंटिटी बन रही है, और आइडेंटिटी कौन सी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। नीचे भी आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दो फैक्टर वहां से आएंगे, देन a माइनस b और a प्लस b, तो प्लस प्लस वाले आपके ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, एंड इट विल रिमेन टेंजेंट इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2, ऊपर एक प्लस का फैक्टर बचेगा, और नीचे cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब cos x by 2 से ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो ये टेंजेंट के फॉर्म में आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स cos x by 2 से डिवाइड करूंगी तो cos अपॉन cos 1 प्लस टेंजेंट x by 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट x by 2, और 1 को फिर मैं टेंजेंट पाई बाय 4 की फॉर्म में लिखूंगी, तो ये वाला फार्मूला आपका बन जाता है, दैट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x by 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड y विल गिव आपका y जो है वो ये रह जाएगा सारा सॉल्व होकर पाई बाय 4 प्लस x by 2। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूंगी तो dy by dx, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव आपका 0 होगा, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 by 2, और इसी का आप जब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव इसी फंक्शन का करना है, अगेन डिफरेंशिएट, देन d2y by dx to it will 0, d2y by dx to इस फंक्शन का क्या आ रहा है 0, बिकॉज 1 by 2 इज योर कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व। नाउ इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, वो बहुत ही ज्यादा है जरूरी, दैट इज पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम ले रहे हैं, यानी कि x और y अब की बार किसी और फंक्शन से रिलेटेड है, दैट इज थीटा। सो हमें वहां पे d2y by dx को फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी। इफ x इज ए फंक्शन ऑफ a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, देखिए x जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का, एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। y आपका फंक्शन है वो भी थीटा का है, दैट इज a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है dy by dx, और फिर हम निकालेंगे d2y by dx। तो dy by dx को हमने बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर रखा है, दैट इज x अगर थीटा का फंक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड dx by d थीटा, देन dy by d थीटा, और इन दोनों को मैं जब डिवाइड कर दूंगी तो हमारा आ जाएगा dy by dx। सो लेट अस सी कैसे करेंगे हम, पहले dx by d थीटा निकालती हूँ, तो ये देखिए a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस थीटा, और sin थीटा का डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो ये सॉल्व होके आपका आता है a थीटा sin थीटा सॉरी cos थीटा, ये आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको, a इंटू माइनस sin थीटा प्लस ये इक्वेशन रूल से होगा थीटा cos थीटा एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल गिव a थीटा cos थीटा। ऐसे ही dy by d थीटा मैं फाइंड आउट करूंगी, और वो आएगा a थीटा sin थीटा। अब मुझे फाइंड आउट करना है dy by dx, एंड dy by dx इज dy by d थीटा ओवर dx by d थीटा।
So a theta sin theta over a theta cos theta. a से a theta से theta कैंसिल हो जाएगा and it will give tangent theta. और ये क्या आएगा आपका tangent theta. यानी कि dy by dx तो मेरा आ चुका है tangent theta, लेकिन हमें ना d2y by dx to फाइंड आउट करना है. तो इस स्टेप को आप जरा ध्यान से देखेंगे और वो क्या होता है d2y by dx to, यानी इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव करना है, यानी d by dx of dy by dx. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. सो आई कैन राइट, इसको मैं इस तरह से भी राइट कर सकती हूँ, दैट इज d by d थीटा ऑफ dy by dx into d थीटा by dx. देखिए d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो और मैं इसको और भी लिखना चाहूँ तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ d by d थीटा ऑफ dy by dx अपॉन उल्टा करके लिख दिया dx by dt. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है. देखिए सबसे पहले d2y by dx2 था, इसको मैं लिख सकती हूँ d by dx of dy by dx which is equals to dy by d. अब हमें जो x है वो थीटा का फंक्शन है तो d थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकती हूँ, यानी कि ये फंक्शन है और ये d थीटा बाई, इसको अपॉन में करके लिखूंगी डिवाइड में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज dx by d थीटा. अब ये सारे टर्म्स मेरे पास है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, यानी कि d by d थीटा ऑफ dy by dx. सो हियर वी गो d by d थीटा ऑफ dy by dx मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ which is equals to tangent थीटा ओवर नीचे क्या निकालना है dx by d थीटा, और dx by d थीटा की वैल्यू मेरे पास है a थीटा cos थीटा. सो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा which is equals to secant square theta. ये secant square theta आएगा अपॉन a theta cos theta. secant square theta नीचे जाके cos square theta हो जाएगा और a cos आपका ऑलरेडी है, या 1 by cos को आप लिख सकते हो secant theta, तो ऊपर चला जाएगा secant cube theta over a theta. That is your required result. यानी कि इस तरह से हम इसका d2y by dx to find out करेंगे. So students, likewise you can find all the derivatives or second order, third order or higher order. Thank you.